we will be learning possessive case of noun, for which we use an apostrophe. Apostrophe is actually a punctuation mark that shows ownership or possession. For example, I say Nikita's pen, so it means this pen belongs to me. Possession shows ownership, for which we use an apostrophe. Now, you must have seen there are two types of apostrophe, two types by which we express possessive case. One is apostrophe S, the another one is S and apostrophe. Let's look at their uses. We use apostrophe and S when we are talking about singular and plural nouns. For example, Sunil's house. For plural noun, the example are men's club, children's day. These were the examples of apostrophe S. Now, the second way is when we are writing it as S and then apostrophe. This is used with plural nouns, those ending with S. We use this apostrophe in order to avoid the hissing sound. Let's look at the example. Girls' hostel. Over here, if I put one more apostrophe, one more S, so it would be very inconvenient to say girls' hostel, and it does not even make sense. That is why we are going to write girls, then apostrophe and hostel. Now there are other examples. Ladies' compartment, boys' club. Okay. Now moving ahead, जो apostrophe होता है उसके बेसिकली दो यूज होते हैं. एक तो होता है possessive का, एक होता है omissive. Omissive is like do not को हम don't बोल देते हैं, would not, won't, could not, couldn't. apostrophe को जब हम possessive case में यूज करते हैं उसका एक मतलब तो होता है ownership और एक मतलब होता है it also reflects origin, kind. For example, I say Keats' poems. When I say this, what I mean is poems written by Keats. Next, children's playground. जब मैं बोलती हूँ children's playground, I mean a playground that is for children. Same, president's speech or senator's speech means the speech that is delivered by the senator or the president. Mother's love means love felt by mother. So apostrophe हमेशा ownership नहीं reflect करता है, it reflects origin, kind and authorship. Okay. Now one more thing, जो possession है, ownership है, वो living creatures, living things का attribute है. That is why possessive case हमेशा सिर्फ living things के नाम के साथ use करते हैं. For example, Mohit's pen. Okay, I won't say pen's cap. It is always going to be cap of the pen. It won't be chair's leg, but leg of the chair. क्योंकि chair और pen non-living thing है. Alright, और हम हमेशा possessive case सिर्फ living things के साथ use करते हैं. Now, you must have seen that there are some non-living things which when personified takes possession. Okay, let's look at it. जो non-living things होती हैं, जो भी intangible in nature है, जिनको हम touch नहीं कर सकते हैं, anything in abstract form, उसको जब हम personify कर देते हैं. Now personify is a poetic device which means giving attributes of a living being to a non-living thing. Whenever we personify a non-living thing which is intangible in nature, the possessive case is used in those instances. For example, I say India's heroes. India is non-living thing, it is intangible, but I have personified India and that is why I can say India's heroes. Now nature's laws. Okay, nature again intangible thing, non-living thing, but as I have personified here, so nature's laws. Mother
mother's earth, all these. Next, अब बात करते हैं कि हम कंपाउंड नाउन के अंदर अपोस्ट्रॉफी कैसे यूज करते हैं. मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कंपाउंड नाउन के अंदर जब हमें प्लूरल फॉर्म करना होता है तो हम जो प्रिंसिपल वर्ड होता है उसको प्लूरल फॉर्म में कर देते हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम कंपाउंड नाउन के अंदर अपोस्ट्रॉफी कैसे यूज करते हैं. जो अपोस्ट्रॉफी होती है वो कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड के अंदर लगती है. जैसे मैं बोलूं दिस इज माय सिस्टर इन लॉज हाउस, सिस्टर इन लॉ. अगर मुझे प्लूरल करना था तो मैं बोलती आई हैव 4 सिस्टर्स इन लॉ. तब मैं जो सिस्टर है, जो प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल वर्ड है, उसको प्लूरल कर दूंगी. लेकिन अभी मुझे पोजेशन की बात करनी है तो सिस्टर इन लॉ में जो लास्ट वर्ड है वो है लॉ, तो मैं उसमें अपोस्ट्रॉफी लगा दूंगी टू शो पोजेशन केस. ओके, नेक्स्ट रूल सेज जब भी कंपाउंड नाउन प्लूरल होगा तो उसमें हम पोजेसिव केस यूज नहीं करेंगे. ऑलराइट, नाउ let's look at other rules also. Okay, you must have seen कि there are instances where noun, preposition and noun are used. ठीक है, जिसके अंदर हम जो थोड़ी सी qualities या फिर और several we add more words to define it, to kind of refine it. Okay, तो उन sentences के अंदर this is our first noun, then it is joined by a preposition, then there is second noun. इसके अंदर हम अपने सेकेंड नाउन के साथ अपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं पोजेसिव केस के लिए. जैसे द किंग ऑफ भूटान्स विजिट इज नेसेसरी. किंग फर्स्ट नाउन, सेकेंड नाउन भूटान, और हमने यहां पर अपोस्ट्रॉफी लगा दी. ऑलराइट, नेक्स्ट रूल. द नेक्स्ट रूल सेज व्हेनेवर 2 nouns are in apposition. Now what is apposition? एपोजिशन का मतलब होता है कि जब हम एक एक्स्ट्रा फ्रेज ऐड कर देते हैं टू ऐड क्वालिटीज टू द नाउन. जैसे मैंने यहां किया हुआ है दिस इज टैगोर द पोएट. ओके, सो मैंने टैगोर के लिए द पोएट यूज किया है इन ऑर्डर टू ऐड क्वालिटी टू इट. व्हेन 2 nouns आर इन ऑपोजिशन, टैगोर एंड पोएट आर इन एपोजिशन, तो मैं इसमें पोजेशन कहां लगाऊंगी? विल आई पुट पोजेशन है लाइक दिस इज टैगोर्स the poet house? That would be wrong. I am going to put apostrophe in the second noun. Okay, in the opposition one मैं यहां पर put करूंगी अपनी apostrophe. This is Tagore, the poet's house. Okay, next, whenever you see that there are 2 nouns जो बहुत closely connected हैं, ठीक है, तो उसमें हम possessive case use करते हैं पीछे वाले में. For example, we know Virat Kohli and Anushka Sharma are married. Okay, and I am passing by, I am saying this is Virat and Anushka's house. Now they both live together, right? We know that they have a common possession. That is why I am going to use apostrophe after the second one. Okay, I am not going to say it like this is Virat's and Anushka's house. That would be wrong. I am going to say this is Virat and Anushka's house. On the same lines, Mehta and Shah's business. इसका मतलब क्या है? Mehta और Shah are closely connected and it is their business. Next, William and Mary's ring. William and Mary closely related and that is why I have put apostrophe on the second one. Okay? Next, जब भी हम बात कर रहे हैं कोई भी 2 नाउन की जिनकी सेपरेट पोजेशंस हैं, ठीक है, उस टाइम पर ईच ऑफ द 2 और मोर कनेक्टेड नाउन्स इंप्लाइंग सेपरेट पोजेशन, उनके साथ हम पोजेसिव केस अलग अलग में यूज करते हैं. जैसे एमिली ब्रॉन्टे की नॉवेल्स और शार्लेट ब्रॉन्टे की नॉवेल्स. ठीक है, तो आई राइट इट एमिली ब्रॉन्टेज एंड शार्लेट ब्रॉन्टेज नॉवेल्स. क्लियर एवरीवन? Anyone having any doubts in any of these questions, in any of these rules and anything? Now moving ahead. Okay, you must have seen कि कुछ instances में हम क्या करते हैं, दो possessive cases use कर देते हैं, 2 possessions हम use कर देते हैं. ठीक है, अब उनमें how to
correct it and what is the error. जैसे यहाँ देखते हैं, my wife's mother's sister is dead. Now who is dead? Sister of my wife mother. मेरी wife की mother की sister, she has died. So I have put two apostrophe है, दो possessions है हमारे पास, दो possessive case लगे हुए हैं हमारे पास. तो अब this is wrong, this is not right. Okay, इसमें error है. What is the error? हम कभी भी इसको ऐसे नहीं लिखते हैं. हम जो हमारी second possession होती है उसको हटा देते हैं और जो उसके बाद noun होता है उसको हम आगे ले आते हैं. ठीक है, जैसे I would write sister of my wife's mother is dead. That would be grammatically correct. Now one more example. My brother's pet dog Jimmy's neckband is missing. इसके अंदर हमने apposition भी यूज किया है. इसके अंदर देखो, पहला apostrophe हो गया ये, फिर हो गया apposition के बाद वाला word Jimmy, उसमें भी हमने यूज किया है. So there are two possessive case जो हमने यहाँ यूज किए हैं. तो अब इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे? जो ये वाला possession case है इसको हम हटा देंगे, इस possession को, और जो ये word neckband है इसको मैं आगे ले आऊंगी. How would I write? Neckband of my brother's pet dog Jimmy is missing. Neckband of my brother's pet dog Jimmy is missing. Clear? Now हमने देखा है जो possessive case होता है वो कभी कभी distance, ठीक है, और टाइम, वेट, लेंथ, इन सब चीजों के लिए भी यूज किया जाता है रिफ्लेक्ट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अ फुट्स लेंथ, इन अ ईयर्स टाइम, अ वीक्स हॉलीडे, अ पाउंड्स वेट, और फिंगर्स एंड्स, मर्सीज सेक, हार्ट्स कंटेंट. नेक्स्ट, this is all about the possessive case of noun. Now let's move on to the another topic, which is articles. Now what are articles? You must have read in your classes 5th 6th that a, n और the are called articles, और इनको हम noun से पहले use करते हैं. ठीक है, we have two types of articles. एक होता है definite article, एक होता है indefinite article. Indefinite article होता है a और an, definite article होता है the. जो a और an होता है वो हम सिर्फ सिंगुलर के साथ यूज करते हैं और काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं. वी नेवर यूज इट विद अनकाउंटेबल नाउन्स. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम इसको अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज नहीं करते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अ बुक, अ पेन, एन एप्पल. ठीक है, अब लेट्स सी इनका यूज कैसे होता है. वी हैव रेड इन स्कूल कि जो a होता है और एक होता है an. ओके, an ये डिपेंड करता है साउंड के ऊपर. अब जो हमारा इंग्लिश अल्फाबेट है उसके अंदर 26 लेटर्स हैं जिसमें से 5 वॉवल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट है. ठीक है, ये मैटर करता है वॉवल्स और कॉन्सोनेंट पे नहीं, उनकी साउंड्स पर. ओके, जैसे an, a, e, i, o, ये 5 जो साउंड होंगी इनके साथ तो हम यूज करेंगे an, और बाकी जो भी साउंड होगी उसके साथ हम यूज करेंगे a. ओके, अब एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कुछ वर्ड्स होते हैं वी आर गोइंग टू लुक एट द साउंड नॉट द वोवल. फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, बहुत कॉमन एग्जाम्पल. पहले कुछ an के सिंपल एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, देन विल कम टू द कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स. ठीक है, जो भी नाउन हमारा वॉवल साउंड के साथ स्टार्ट हो रहा है उसके साथ हम an यूज करते हैं. जैसे एन एनिमी, ठीक है, एन आर, एन अम्ब्रेला, एन एयर, एन आमंड, एन इंक पेन, इंक पैड. इसके अंदर जो h होता है वो साइलेंट होता है, वी कॉल इट एयर. सेम r बोलते हैं. ठीक है, h इज अगेन साइलेंट ओवर हेयर. तो मैटर करता है वॉवल साउंड, नॉट द यूज ऑफ द वॉवल. और एग्जाम्पल देखते हैं, और जो बाकी कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं जैसे बॉय, सो अ बॉय. ठीक है, अ हॉर्स, अ यार्ड, अ होल. ठीक है, नाउ लुक एट अदर एग्जाम्पल. दिस वर्ड यूरोपियन, जब हम इसको बोलते हैं तो साउंड किसकी आती है? यू की.
राइट? साउंड ई की साउंड तो आ ही नहीं रही है, साउंड किसकी आ रही है? यू, य की साउंड आ रही है. दैट इज वाई आई एम गोइंग टू यूज ए विद इट. जो वॉवल की साउंड होती है, जो हमने हिंदी भाषा में स्वर पढ़े होते हैं, वो साउंड होती है बेसिकली हमारे पास एन के लिए. बाकी सभी की सभी साउंड के साथ, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ अ लगता है. यू नीड टू बी अवेयर ऑफ साउंड ऑफ यू एंड व. Okay, these two sounds are important. For example, look at this. A one-horned rhino. Okay, one. यहाँ पर vowel तो o है, लेकिन sound किसकी है? One. V. Okay, this is the sound. And V is not a vowel sound. That is why I have used a before it. Okay, a horse, a yard, a hole, a European, a university, a union, क्योंकि साउंड किसकी है? यू की. ठीक है. a unicorn, again a useful, again यू की साउंड. यहाँ पर व की साउंड, अगेन वन व की साउंड है, इसीलिए यहाँ पर मैं एन की जगह अ यूज करूंगी. एन सिर्फ और सिर्फ यूज होगा वॉवल साउंड पर. आई एम गोइंग टू रिपीट दिस वंस अगेन. जो आर्टिकल्स होते हैं उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल होता है THE द. इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए और एन. अभी हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं. जो ए और एन होता है वो हम सिर्फ सिंगुलर के साथ यूज करते हैं और काउंटेबल चीजों, मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं. वी नेवर यूज इट विद अनकाउंटेबल नाउन्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो इसका यूज है वो हम कैसे, what is the way that determines the use of the article? The way is through sound. अगर vowel sound है, sound not vowel, अगर vowel sound है तो हम an use करेंगे. अगर consonant sound है तो हम a use करेंगे. Simple. Okay, you need to be aware of the usage of you and were while attempting questions from this portion. Now you must have seen there are some short forms. जैसे मैं ले लेती हूँ NRI. वैसे तो N तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड किसकी है? एन. ये साउंड है तो इसके साथ क्या लग जाएगा? एन NRI. अब जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं MLA. है तो M कॉन्सोनेंट, लेकिन साउंड किसकी है? एम. इसकी साउंड है ए. Right? That is why I am going to put an here instead of a. Clear everyone? Now let's move on to our next topic, which is definite article the. अब हम इसके अंदर देखेंगे जो definite article the होता है उसका क्या क्या यूज होता है और क्या क्या यूज, कहाँ इसको हम omit करते हैं. ठीक है. सबसे पहले let's look at its uses. Definite article हम यूज करते हैं particular चीजों के पास या फिर उन सब चीजों के पास जो हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं. जैसे मैं बोलूं आई बॉट अ बैग और जो बैग है वो ब्लू कलर का है. आई बॉट अ बैग, तो यहां पर तो मैंने अ यूज किया है, बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बैग दैट आई हैव बॉट. सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एन ऑलरेडी मेंशन्ड थिंग. दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू पुट द. ओके. नेक्स्ट, द बुक यू वांट इज अवेलेबल हियर. व्हिच बुक? जो तुम्हें चाहिए. नाउ अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर बुक. दैट इज व्हाई वी हैव एडेड द. ओके. नेक्स्ट, जब भी हम बात करेंगे कोई भी सिंगुलर नाउन जो एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट जस्ट दैट वन पर्टिकुलर थिंग. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं हॉर्स एक बहुत यूजफुल एनिमल है. नाउ आई एम नॉट रेफरिंग टू जस्ट वन पर्टिकुलर हॉर्स और 2 horses. नो, आई एम रेफरिंग टू horses as an animal, as a group. Okay, जितने भी horses हैं वो सभी बहुत useful हैं, right? So whenever a singular noun is referring to the whole class, at that time we are going to put the in front of it. Okay. Next, third case is जब भी मैं noun, preposition और noun use कर रही हूँ. ठीक है. Noun, preposition, noun, whereas ये और दोनों nouns different है. ठीक है. तो उस टाइम पर भी, नाउ जी इज गोइंग टू बी कैपिटल एयर,
उस टाइम पर मैं द ऐड करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, द अर्जुना ऑफ महाभारत वॉज अ ग्रेट वॉरियर. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन सबसे पहले, और आई हैव यूज्ड दिस स्ट्रक्चर नाउन preposition noun, noun preposition noun. That's why I am going to add the in front of it. Okay. The third is whenever I am talking about geographical features like mountain ranges, islands, rivers, plateaus, oceans, then also I am going to put the, जैसे the Alps, the Himalayas, the Sahara, the Thar, all these geographical features, इनके साथ भी हम the use करते हैं. Next, with names of religious and mythological books, newspapers and magazines, जैसे the Hindustan Times, the Bible, the Ramayana. So whenever I am talking about religious or mythological books, then also I am going to add the to it. Next, जब भी मैं celestial bodies और directions की बात कर रही हूँ, जैसे the sun, the moon, the earth and directions, जैसे बहुत common example है the sun rises in the east. यहाँ पर sun celestial body है इसीलिए the add हुआ, ईस्ट डायरेक्शन है इसीलिए यहां पर द ऐड हुआ. नेक्स्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. देखो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में अगर मैं उसकी काउंटेबिलिटी की बात नहीं कर रही हूं, जैसे मैं नहीं बोल रही हूं कि आई गिफ्टेड हर अ पियानो, तब तो मैं अ यूज करूंगी. बट व्हेन आई एम रेफरिंग टू द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन एनी अदर वे, देन आई एम गोइंग टू यूज द. जैसे शी प्लेज द गिटार वेल, शी इज लर्निंग टू प्ले द पियानो. सो मैंने यहाँ पर क्या यूज किया है, द यूज किया है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में. नेक्स्ट, जो हमारी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, शिप्स के नेम हैं, ठीक है, और ट्रेन्स का, एरोप्लेन्स, कोई भी फिजिकल पोजीशन कोई वर्ड बताते हैं वो, जैसे फॉर एग्जांपल द हिंदूज कम्युनिटी, द राजपूत्स, द गोरखास. ओके, अब नाउ फिजिकल पोजीशंस लाइक द टॉप, द बॉटम. ओके, नेम ऑफ शिप्स लाइक, नेम ऑफ ट्रेन्स लाइक द राजधानी, नेम ऑफ शिप्स लाइक the Arihant. Okay, all these. Next, before parts of body, okay, जैसे जो body parts हैं, she was hit on the head, so head is a body part, the head. Okay. Next, this I taught you earlier also. जब भी हमें plural noun को common noun बनाना होता है तो हम direct comparison करते हैं. तो जब हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं तो हम अपने प्लूरल नाउन के जब आगे द लगा देते हैं तो वो कॉमन नाउन बन जाता है. ठीक है. सो व्हेनेवर वी हैव टू कन्वर्ट प्लूरल नाउन इनटू कॉमन नाउन, जैसे मैंने बोला मोहित है, एक बहुत अच्छा बच्चा है जिसको क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है खेलना और बहुत अच्छा भी खेलता है, तो अब मैं डायरेक्ट कंपैरिजन करूं और बोलूं मोहित इज द विराट कोहली ऑफ आवर क्लास, तो इसके अंदर मोहित इज एन इंडिविजुअल, यहाँ पे तो ये प्रॉपर नाउन है, बट ओवर हियर विराट कोहली इज अ कॉमन नाउन. नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स. जब भी मैं एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री, जैसे ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, उस टाइम पर, अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर दो तरह के नंबर होते हैं, एक होता है ऑर्डिनल नंबर, एक होता है कार्डिनल नंबर. ऑर्डिनल नंबर का मतलब होता है रैंक, फर्स्ट सेकंड थर्ड. कार्डिनल नंबर होता है 1 2 3 4. सो व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनल नंबर, देन ऑल्सो आई एम गोइंग टू ऐड द इन फ्रंट ऑफ इट. ओके, देयर इज वन मोर एग्जाम्पल जहां पर मैं यूज करती हूं और वो एडजेक्टिव्स का ही है. जब भी मैं कोई भी एडजेक्टिव को यूज करूंगी टू रेफर टू द कम्युनिटी, टू द क्लास इट बिलोंग्स टू, देन ऑल्सो आई एड द. फॉर एग्जाम्पल, आई से देयर आर, जैसे द वर्ड पुअर इज एडजेक्टिव. ओके, शी इज अ पुअर गर्ल. ओके, ओवर हियर पुअर इज एडजेक्टिव, बट इफ आई से you should help the poor, here I am using the word poor to refer to the poor people. That is why I have used the. So whenever we are using an adjective to refer to a whole class, then the add होता है. जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, the brave shall win. Here I am talking about all the brave people. Okay. Now there are some instances जहां पर हम articles use करते ही नहीं है. अब वो examples कौन से हैं? सबसे पहला example हमारे पास आता है
before names of days and months. Okay, it is never going to be she will meet him on the Monday. वो गलत है, हम सिर्फ on Monday बोलेंगे. ठीक है, they are getting married in May. It is not in the May, क्योंकि हमेशा आर्टिकल द ओमिट हो जाता है डेज और मंथ्स के नाम के साथ. दूसरा इंस्टेंस लैंग्वेजेस के साथ. ठीक है, जैसे शी इज लर्निंग स्पेनिश, हम ये नहीं बोलेंगे शी इज लर्निंग द स्पेनिश, दैट वुड बी रॉन्ग. स्पेनिश. नेक्स्ट सब्जेक्ट्स, जैसे शी हैज नो इंटरेस्ट इन केमिस्ट्री, द केमिस्ट्री नहीं होगा, सिर्फ केमिस्ट्री. सो इंस्टेंसेस वेयर ओमिशन ऑफ डेफिनेट आर्टिकल टेक्स प्लेस. व्हाट आर दोज इंस्टेंसेस? द फर्स्ट वन इज बिफोर द नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स. The second instance is before the names of languages, जैसे she is learning Spanish. Okay. Third is before the names of subjects, जैसे she has no interest in chemistry. Now, our last slide. Before name of diseases. Okay. कुछ बीमारियों के नाम exceptions है, जैसे measles, plague, mumps. इनके साथ हम द यूज करते हैं, द मीजल्स, द मम्स, द प्लेग. ओके, लेकिन बाकी सभी डिजीजेस के साथ वी डोंट यूज द. फॉर एग्जाम्पल दीपक डाइड ऑफ कैंसर, तो द कैंसर कुछ नहीं होता है, सिर्फ कैंसर. ओके. नेक्स्ट, बिफोर नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स एंड सीजन, इसके साथ भी हम द यूज नहीं करते हैं. जैसे ही विल कम टू दिल्ली इन विंटर, नॉट द विंटर. लेकिन अगर मैं बाय चांस विंटर के बाद सीजन लगा दूं, then I can say the winter season. Okay, ऐसे ही फेस्टिवल्स के नाम पे भी, जैसे दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री. इन दिस सेंटेंस ऑल्सो मैं द दिवाली नहीं बोलूंगी. ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं द दिवाली सेलिब्रेशन, तब दिवाली के बाद अगर मैंने कोई और नाउन ऐड कर दिया है, then तो I can add the definite article. Otherwise I am not going to add. जैसे मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, he will come to Delhi in winter. We can say the winter season, लेकिन the winter हम कभी भी नहीं बोलेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं स्पोर्ट्स का. ठीक है, जैसे मैं बोलूँ ही प्लेज द बैडमिंटन, जो स्पोर्ट्स के नाम होते हैं ना उनके साथ भी हम द यूज नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल शी प्लेज बैडमिंटन, ओके, नॉट द बैडमिंटन. ओके. जैसे ही एक और दूसरा सेंटेंस, ही लाइक्स क्रिकेट, नॉट द क्रिकेट. ओके. नाउ नेक्स्ट, बिफोर नेम्स ऑफ मील्स, जो हमारा खाने के होते हैं उनके साथ भी हम द ऐड नहीं करते हैं. जैसे आई वोंट से ही स्किप्ड लंच, मैं जैसे ये सेंटेंस है ही स्किप्ड लंच टुडे, दिस इज ग्रामेटिकली करेक्ट. लेकिन अगर बाय चांस मैं ऊपर द ऐड कर दूं तो वो गलत हो जाएगा. He skipped lunch today is right, but he skipped the lunch today, that would be wrong, right? Next, लेकिन कई कुछ इंस्टेंसेस होते हैं जिसके अंदर हम आर्टिकल अ ऐड कर देते हैं, लेकिन वो हम सिर्फ तब ऐड करते हैं जब हम एक एडजेक्टिव ऐड कर देते हैं मील्स के नाम के सामने. जैसे मोहित हैड अ लेट लंच, लंच मील का नाम, देन लेट, ये क्या है हमारा, दिस इज आवर एडजेक्टिव. ओके, अब हमने इसके सामने अ ऐड कर दिया है, दैट वुड बी फाइन. ठीक है, जब भी वैसे जो मील्स के नाम होते हैं उनके साथ हम द ऐड नहीं करते हैं, लेकिन अगर बाय चांस हमने कोई एडजेक्टिव ऐड कर दिया है, सो इन दैट इंस्टेंस आई एम गोइंग टू ऐड अ इन इट. ओके, एंड व्हेन वी आर स्पेसिफाइंग इट, ओके, एट दैट, जब हम बिल्कुल स्पेसिफिक करके बोल रहे हैं, जैसे द ब्रेकफास्ट आई हैड एट द ताज होटल वाज डिलीशियस. नाउ व्हिच ब्रेकफास्ट, द ब्रेकफास्ट जो मैंने ताज होटल पे किया था वो. अब जब मैंने स्पेसिफाई कर दिया है, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू यूज द विद इट, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू यूज द. क्लियर एवरीवन? एनीवन हैविंग एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? जो मील्स वाला है, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. व्हाई? क्योंकि दिस हैज कम इन दिस questions have been asked from this particular topic. He skipped the lunch today, वो गलत होगा. लेकिन अगर by chance मैं कुछ specifically बोल रही हूँ या मैंने कुछ adjective add कर दिया है, तब मैं use कर सकती हूँ. Now let's look back at our definite article once again and revise it. Okay? हम definite article का use कहाँ करते हैं? सबसे पहले
कोई भी पर्टिकुलर चीज को बताने के लिए, ठीक है, या फिर कोई भी ऑलरेडी मेंशन्ड चीज के बारे में बताने के लिए। दूसरा, जब कोई सिंगुलर नाउन एक पूरी क्लास को रेफर कर रहा है। तीसरा, जब नाउन प्रेपोजिशन नाउन यूज किया जा रहा है, एट दैट टाइम ऑल्सो आई एम गोइंग टू एड डेफिनेट आर्टिकल इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट नाउन। नेक्स्ट, जब मैं माउंटेन रेंजेस, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, रिवर्स, ओशंस, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट या ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में बात कर रही हूँ, तब भी मैं द ऐड कर दूंगी। और जैसे मॉन्यूमेंट्स हो गए हैं, द ताजमहल, ठीक है, आर्किटेक्चर, कुछ ऐसी चीजें, उसके साथ भी हम द ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट, रिलीजियस और माइथोलॉजिकल बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जैसे द बाइबल, द रामायणा, द हिंदुस्तान टाइम्स। अब सेलेस्टियल बॉडीज और डायरेक्शन। सेलेस्टियल बॉडीज मतलब जैसे द सन, द मून, ठीक है, द अर्थ, उस टाइम पर भी आई एम गोइंग टू ऐड डेफिनेट आर्टिकल, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू ऐड। ओके, डायरेक्शंस के साथ, जैसे बहुत कॉमन एग्जाम्पल है द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसके अंदर आई हैव added the in front of sun also and in front of east also, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन है और सन हमारी सेलेस्टियल बॉडी है। ओके, नेक्स्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के सामने, जैसे शी प्लेज द गिटार वेल, शी इज लर्निंग टू प्ले द पियानो। मूविंग अहेड, बिफोर नेम्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज एंड पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ शिप्स के नाम, ट्रेन्स के नाम, एरोप्लेन्स के नाम, वर्ड्स के नाम, फिजिकल पोजीशंस के नाम, फॉर एग्जाम्पल द हिंदूज, द राजपूत्स। अब these are name of the communities. Now name of the physical position, जैसे the top, the bottom. Okay, name of ships, the Rajdhani Express, the Vande Bharat, तब। Now before parts of bodies also, जैसे मैं बोलूं कि she was hit on the head, तो head is a body part, so I am going to put the in front of it. Next, whenever I am converting plural noun into a common noun, for example, Mohit is the Virat Kohli of our class. Over here, Mohit is proper noun, but Virat Kohli is common noun because of the direct comparison that is made. Next, superlative degree of adjective के साथ, उसके बाद ordinal numbers के साथ। और जब भी मैं कोई भी एडजेक्टिव को उस पूरे ग्रुप को रेफर करने के लिए बोल रही हूं, एट दैट टाइम ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट, कब हम डेफिनेट आर्टिकल को ओमिट कर देते हैं? सबसे पहले जब भी हम डेज या मंथ्स के बारे में बात कर रहे हैं, इट वुड नेवर बी शी विल मीट हिम ऑन द मंडे, वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, लैंग्वेजेस के नाम के साथ, ठीक है, सब्जेक्ट्स के नाम के साथ, डिजीजेस के नाम के साथ, ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, मीजल्स, मम्स, प्लेग, जो हम ध्यान रखेंगे। अब कुछ फेस्टिवल्स और सीजन्स के साथ भी हम क्या कर देते हैं, जब भी हम फेस्टिवल सीजन्स की बात करेंगे तब भी हम द एडिट कर देंगे, ओमिट कर देंगे मतलब, ठीक है। लेकिन अगर बाय चांस मैंने एक और नाउन ऐड कर दिया है उसके बाद, जैसे विंटर सीजन कर दिया है, तब द आ सकता है। ऐसे ही बिफोर नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स, जैसे शी प्लेज द बैडमिंटन इज रॉन्ग, जस्ट बैडमिंटन। ओके, नेक्स्ट, बिफोर नेम्स ऑफ मील्स, he skipped lunch today, ठीक है, the lunch कभी नहीं होगा। Clear everyone? So now we have covered possessive case as well as articles. This was our module 3. In the next class we are going to solve some PYQs and move on to our next topic. So I have one more thing to say to all our aspirants and students. Tomorrow there is going to be FCAT 1 2024.